Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Sir, today we will do the exercise 2A. How are you all? Sir, fine. Sir, fine. Fine. Sir, I want to ask you. तो बेटा हम लोगों ने इंटीजर्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया. Have we completed it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir, Yes. we have to start And now from the fraction exercise 2A. we have to start the chapter fractions. आज fractions start करना है. Am I right? Yes, No, sir, sir. in Yes, sir. sir, in previous class we explained the fractions. I explained fractions क्या होता है. Okay. तो कोई बात नहीं, आज मैं दोबारा से explain कर दूंगा. No problem. आपको क्या करना है अभी? You have to write down this definition on the page number 16. Page number 16 पर ये दिख रहा है fractions. इसकी definition note down करिए. Yeah. Okay, sir. Okay. Sir, yesterday I have sent my work on group. Very good बेटा, very good. Fractions chapter की definition यहाँ से यहाँ तक पूरी. And sir, me too. Very good बेटा, करिए. Start writing. Sir, we have to write. Yes, you have to write in your copies.
बेटा आपकी बुक्स में डेफिनेशन होगी पेज नंबर 16 पर, ओपन पेज नंबर 16, चैप्टर 2 फ्रैक्शंस, दिख रहा है चैप्टर 2 फ्रैक्शंस, पेज नंबर 16। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस की डेफिनेशन दिख रही है। नोट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर कॉपीज, बस इतना बोला मैंने। Write down the definition of fractions from the book, which is given on page number 16. ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन करो। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Look at the book, all of you. देखिए, I'm explaining what are fractions. Although you have studied fractions in your previous classes also. Yes. A part of something ये पढ़ा है आपने? A part of something is a fraction. Yes, sir. Part of a whole is a fraction. यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन देखिए फ्रैक्शन की, a upon b. A number which is in the form a upon b, where a and b are natural numbers, this is a fraction. ठीक है? Sir, whatever you are writing, we have to write in our that copy. नहीं Your नहीं copy, नहीं math. नहीं, you just have to write the definition. ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो एक ऐसा नंबर जो a upon b की फॉर्म का है, वो where a और b दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। तो these type of numbers are known as fractions. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/5, मान लीजिए लिख दिया 2/5। तो here a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? a की जगह क्या दिख रहा है? What is written in place of 2? And what is the value of b? It is 5. b की वैल्यू दिख रही है 5। तो a numerator is 2 and 2 is a natural number. 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। And denominator में क्या है? 5, वो भी एक नेचुरल नंबर है। Then we can say yes, this is a fraction. Understood? ये एक fraction है। Similarly, 1/7, this is also a fraction. Here, the numerator 1 is a natural number. Denominator 7, it is also a natural number. Therefore, we can say that 1/7 is also a fraction. Okay, this is also a fraction. Sir, 1/7 is a unit fraction. हाँ, very good. चलिए इसके बाद -3/11 ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है नहीं है Sir, बेटा? -3/11 is a rational number. इज अ रेशनल नंबर। वेरी गुड बेटा दक्ष, तुम तो पहले से ही बहुत कुछ जानते हो। बहुत अच्छी बात है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस? The rational numbers are like a upon b. बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में, वो ये होता है Rational numbers are made up of integers and fractions Sir, are made up fractions of cannot natural be- numbers. Yes, sir. in a rational number, the number where the numerator and denominator both are integers, दोनों integers होंगे, वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। अब इससे इससे क्या फर्क पड़ता है? नेचुरल और इंटीजर से क्या फर्क होता है? फ्रैक्शंस केवल आपके पॉजिटिव होंगे। ओनली पॉजिटिव फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, but rational numbers could be positive as well as negative.
रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये 1/7 फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। 2/5 दिस इज अ फ्रैक्शन एज वेल एज अ रेशनल नंबर, दोनों है। But -3/11 is not a fraction, it is only a rational number. ये रेशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं है ये फ्रैक्शन? Why it is not a fraction? Sir, Here because it is negative. yes, here the numerator -3 is not a natural number. Natural number कभी नेगेटिव में होते हैं? नहीं होते ना। तो No, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 कहाँ से शुरू होती है काउंटिंग? 1 से शुरू करते हैं काउंटिंग। 1 2 3 and 4 sir, 5 in 6। whole numbers we have to start from 0. तो काउंटिंग जो होती है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो द नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये -3, देयरफॉर दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। -3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज एन इंटीजर बट नेचुरल नंबर नहीं है। So because the numerator is not a natural number, therefore the given number is not a fraction. ये एक fraction नहीं है, ये एक rational number है। Rational Sir, number में rational numbers form P upon Q and they are integers. where P and Q are integers. चलिए, this is the definition of fractions आपने जो भी अपनी में लिखी है। Now we will study types of fractions. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का आपको यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग इन योर कॉपी। आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के लिए कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है, बस ध्यान से सुनना है कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दिस, सपोज 7/10, 3/100, 27/1000 या फिर 39/399, चलो 399/10,000, ओके, 21/1 lakh. So all these numbers where denominator is of the form 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, इस फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर इस टाइप का होगा, तब ऐसे नंबर, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बुलाते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाट इज द नेम? क्या नाम है? डेसिमल फ्रैक्शन। Decimal fraction. वेरी गुड। समझ में आ गया बेटा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? चलो मुझे बताओ बेटा। Yes, sir. ये जो मैंने नंबर लिखा है, इज दिस अ डेसिमल फ्रैक्शन और नॉट? No, sir. No, No. sir. नो। Yes, sir. Yes, sir. यस। Sir, because in the denominator, this is zeros are coming. yes, sir. So, sir, it is there. No, it is not a decimal fraction. ये सारे डेसिमल फ्रैक्शन हैं, ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पर ये नंबर 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh इस फॉर्म का नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर इस टाइप का नहीं है। That is why it is not a decimal fraction. डिनोमिनेटर में 200 आ रहा है, तो 1 के आगे 0 लगा होना चाहिए। 1 फर्स्ट डिजिट 1 होना चाहिए और बाकी डिजिट्स आपकी 0 होनी चाहिए, तब डेसिमल फ्रैक्शन होगा। बट यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 1 नहीं है, फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है। Therefore, this is not a decimal fraction. Have you all understood क्या होते हैं decimal fractions? Yes, sir. Yes, sir. So now ऐसे numbers जो कि वल्गर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं वो क्या होते हैं? वल्गर। दूसरा हम पढ़ेंगे वल्गर फ्रैक्शंस। पहला पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शंस। Vulgar fractions are those where denominator is not of this type. जहाँ पर denominator इस टाइप का नहीं होगा वो vulgar fraction होंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि 3/5, 2/17, 29/300 या फिर
17/38, ऐसे कोई भी फ्रैक्शंस आपके जो होंगे, these are all vulgar fractions. जो मतलब डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होंगे वो वल्गर फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड वल्गर फ्रैक्शन। Sir, मैं I आपके cannot यहाँ- understand. Again, vulgar fractions. Sir, Sorry? please explain. Sir, I cannot explain. Sir, I cannot वल्गर understand. फ्रैक्शंस Vulgar- सुनो ध्यान से सुनो। Vulgar fractions are those where denominator is not of this form. 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म का डिनोमिनेटर नहीं हो, बस इस टाइप का डिनोमिनेटर नहीं होता, वो वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा। आ गई बात समझ में बेटा? Yes, sir. चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस, वल्गर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस हमने पढ़ लिया। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगली बात समझ लीजिए, 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/7 प्रॉपर है, 9/11 प्रॉपर है, 799/800 ये भी प्रॉपर है। तो ऑल दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Where the numerator is greater than denominator or numerator is equal to denominator. Numerator denominator से या तो बड़ा होगा या equal होगा। Okay, for example, 5/2, 7/3, numerator बड़ा हो गया। 17/17, क्या ये एक improper fraction है? 17/17 बताओ बेटा, नाराज हो? नहीं आ रहा? Yes. Yeah. Yes, sir. Understood? समझ में आ रहा है? What are improper fractions? Yes, sir. Very good. So let me ask you एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, you have to answer. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। 4, पहली बात तो ये बताओ, is this a fraction? क्या ये एक फ्रैक्शन है? 4, No, sir. Yes. No, sir. sir. यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, therefore this is not a fraction। और अगर मैं कहूँ ये फ्रैक्शन है तो मानोगे नहीं मानोगे? Sir, if the answer is sir any sir single number, so sir you sir everybody understand the denominator is 1. The fraction, this is a fraction. Yes, it is a fraction. How? You can write this number as 4/1. लिख सकते हैं 4/1. So yes, it is a fraction. पहली बात। दूसरी बात ये कि is it a proper fraction or improper fraction? कौन सा fraction? Improper. It is an improper fraction. तो मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, केवल 4 लिख लूँ यहाँ पर, लिख सकते हैं yes, 4/1 is a fraction and it is an improper fraction। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो 4 is an improper fraction। इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो सब improper fraction। समझ में आ गया बेटा improper fractions क्या होते हैं? आगे बढ़ना है, मिक्स फ्रैक्शन पे आना है। हाँ जी, shall we move on to mixed fractions? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Mixed fractions are very easy. Hello, sir. Your voice is not coming. मिक्स्ड फ्रैक्शंस, अभी मैंने आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख के दिखा। मिक्स फ्रैक्शन बनते कहाँ से हैं? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं बनते। कहाँ से बनते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा था 5/2। चलो 5/2 की जगह 7/3 लिख लेते हैं। तो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, आप लोग बचपन से करते आते हैं, ये काम सबको आता है। 7 को 3 से डिवाइड करा 2, 6, रिमाइंडर 1। तो ठीक है, याद आया? ये कुछ ऐसा करते हो? कैसे लिखते हैं इसको? यस सर, याद आ रहा है। 2 होल 1/3 ऐसे लिखते हैं। 2 होल 1/3। यस सर। तो ये जो है, दिस इज नोन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये क्या है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Improper fraction, sir, it is. So we can make mixed fraction with the help of an improper fraction. Proper fraction की help से mixed fraction नहीं बना सकते। तो आगे बात बेटा, 2 होल 1/3। अब मिक्स फ्रैक्शन दो चीजों से बनता है। अच्छा, मिक्स जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? मिक्स करना का क्या मतलब होता है? दो चीजों को पकड़ो और मिला दो। दो या दो से ज्यादा चीजों को पकड़ के अगर मिला देते हैं तो क्या कहते हैं? मिक्स कर दिया। Sir, your Right? voice is not coming. There is some network problem at your end, beta. Sir, it is very easy, sir. We can do sir fractions, sir, in any sir question. मैं पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोगों से मैंने एक बात पूछी। मिक्स जो वर्ड है, मिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अगर मैं दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देता हूँ तो क्या बोलते हैं? मिक्स कर दिया। एम आई राइट? सही कह रहा हूँ? Sir. Yes, Yes, sir. sir. दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देते हैं तो कहते हैं मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे कौन सी चीजें मिक्स हो रही हैं? मिक्स फ्रैक्शन में क्या मिक्स हो रहा है? दो चीजें मिक्स हो रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी दो चीजें मिक्स हो रही हैं। देखिए, 2 एंड 1/3, ये दोनों चीजें यहाँ पर मिक्स होकर के मिक्स फ्रैक्शन बन रही है। ऐसा क्यों? 2 क्या है? 2 इज अ होल नंबर। 2 यहाँ पर क्या है? इट इज अ होल नंबर। एंड 1/3 क्या है? 1/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब मैं इन दोनों चीजों को मिला देता हूं तो क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन बनता है। आ गई बात समझ में? होल नंबर पार्ट, दो पार्ट होते हैं मिक्स फ्रैक्शन के। दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है होल नंबर वाला पार्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट। दोनों को मिक्स करके क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन बनता है। क्या बन गया? 2 होल 1/3। तो दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा कोई अच्छा बच्चा है इस क्लास में? अच्छे बच्चे हैं इस क्लास Yes, में? sir. Yes, sir. सारे बच्चे Yes, sir. प्यारे प्यारे से। Yes, sir. Sir, Yes, what sir. forward? Sir, in but real you would not meet, sir. तो बेटा दक्ष, एक काम करोगे मेरा? Yes, sir. आप कॉपी में जो मैं वर्क कराता हूँ नोट करते हो ना, Yes, sir. उसकी एक फोटो क्लिक करके, जो भी आज कराया उसकी फोटो क्लिक करके इवनिंग में डाल दिया करो 5:30 पे। Okay, sir. Sir, I Perfect. posted yesterday my all the work of integers. वेरी गुड, सर वेरी मैं भी गुड। भेज दिया करूंगा। सर मैं भी भेज दिया करूंगा। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, टर्न कर लेते हैं। एक वीक दक्ष कर देगा, एक वीक में इशू कर देगा। ठीक है? ओके सर। Uh,
तो दक्ष आप कर दो, ये वाला जो वीक आएगा आज कर देना, और आगे वाला जो वीक आएगा उसमें दक्ष कर देंगे, उसके बाद वाले वीक में ईशू कर देंगे, ठीक है। ओके सर। Okay. सर मतलब अब तक अगले सैटरडे तक करते रहेंगे, उसके बाद हाँ। सर अगले सैटरडे Yes, तक मैं करूंगा। वेरी गुड, बहुत समझदार, वेरी नाइस। ओके 7th क्लास में होकर के इतनी समझदारी कैसे आ जाती है बच्चों में? मैं तो इतना बड़ा हो गया, मेरे अंदर अभी भी इतनी समझदारी नहीं है। जब मैं 7th क्लास में था मैं तो बहुत सीधा था, मुझे बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी मेरे में। Sir, in my house, sir, I Sir, do extraordinary Sir, student. in my house, sir, I do sir very shatani. Sir, Sorry? sir, outside, not sir, I do. क्या हो गया दक्ष? घर बेटा? सर ही सेइंग दैट मैं अपने घर में शैतानी करता हूँ, बाहर जाके चुप हो जाता हूँ। अच्छा, इसी को समझदारी बोलते हैं। मैंने सुना है कि दक्ष से एक बार मोदी जी भी आए थे किसी बारे में, कोई किसी चीज में परेशान हो रहे थे तो वो भी सलाह लेने आए थे। कहते हैं दक्ष बहुत समझदार आदमी, उससे कुछ सलाह लेंगे। Am I right, दक्ष? सही कह रहे हैं ना? Yes, sir. Sir, he is saying yes, sir. Sir, I am saying okay. Equivalent fractions. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? बड़ा सिंपल सा काम है बेटा। 3/5 मान लीजिए एक नंबर लिखा मैंने, अब मैंने इसको ऐसे भी लिख लिया 6/10, इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख लूँ 9/15, चाहूँ तो ऐसे लिख लूँ 12/20। तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Sir, you are multiplying. हाँ जी बेटा। Sir, means sir 3/5 you are multiplying. हाँ, so By 2. all these fractions are equal क्यों है? मैंने क्या करा 3/5 में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया 6/10। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा, सेम नंबर से करना है तो 6/10 मिल जाएगा। तो ये दोनों फ्रैक्शंस आपके इक्वल फ्रैक्शंस हो गए। तो आप चाहे तो किसी भी नंबर से कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 3/3 से करा था तो 9/15 मिल गया। मैं चाहूँ तो 3/5 को सीधे 3/5 को मैं चाहूँ तो मेरा मन है, मेरी मर्जी, चाहे किससे करूँ। 11/11 से कर लिया तो मिल गया 33/55। दिस इज आल्सो एन इक्वल फ्रैक्शन। तो इन सारे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या होता है? Sir, divided. तो हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद वो एकदम ये दोबारा से 3/4 यानी 3/5 यानी कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अगर मैं किसी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा Sir, तो like 33/55. We have to divide by 33/55 11. को दोनों The को answer is 11 से 3. डिवाइड किया तो दोबारा से 3/5 मिल जाएगा। अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा नंबर, ठीक है। अब आते हैं आपके लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक। Okay, sir. लाइक फ्रैक्शंस आर दो जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। फॉर एग्जांपल 3/5, 7/5, 4/5, 1/5, 11/5। all these are like fractions जहां पर डिनोमिनेटर सेम है यानी कि फ्रैक्शंस लाइक है। कैसे होगा? लाइक लाइक मतलब एक जैसे। डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट मींस द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? Unlike fractions are those where the denominators are different. 3/5, 7/8, 4/9, 11/13। यहाँ पर देखिए all the denominators are different. सारे denominators Yes, sir. Sir, that means yes, sir, these sir. are We have unlike fractions. Understood what are like sir. and unlike fractions? Yes, sir. Sir, we have understand. Very good, beta.
You all are very समझदार. Sir, I want to ask that, sir, UT1 will be objective or subjective? UTs, तुम्हें इस बात की और टेंशन हो रही है कि ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे? Because sir, in तो the previous अगर year the सब्जेक्टिव UTs are मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्टिव होंगे तो पढ़ाई करोगे, ऑब्जेक्टिव होंगे तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ है? Oh, sir, because in the previous year, when Sir, we cheating. go to exam UT1, they will be objective. नहीं बेटा, I really don't know about it right now. I can't say anything about this. Whatever the school's management and the principal sir and the coordinators decide, that will be done. Okay. I am no one in this school. मेरी कोई वैल्यू नहीं है स्कूल के अंदर, मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा मैथ्स टीचर हूँ, गरीब आदमी. चलिए. इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस जो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस. और भी कई Okay, नामों sir. से जानते हैं इनको. Okay, sir. Irreducible fractions are those where the कई तरह से डेफिनेशन हो सकती है. सिंपलेस्ट, a fraction in its simplest form is known as irreducible fraction. एक डेफिनेशन हो सकती है. दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? A fraction where the numerator and denominators are co-primes. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके co-prime numbers हैं, उस फ्रैक्शन को हम irreducible फ्रैक्शन बुलाते हैं. एक और डेफिनेशन हो सकती है. Okay, sir. A fraction in which numerator and denominator दोनों का HCF 1 होगा, वहां पर भी हम क्या बोलेंगे? These fractions are irreducible fractions. देखिए, And sir, unit fractions are those fractions that the numerator 1. जैसे कि 3/5. 3/5 is an irreducible fraction. क्यों है ये irreducible fraction? Because ये आप इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. ओके. बट अगर मैंने ये तो irreducible हो गया, दिस इज irreducible मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते. अब मैंने मान लीजिए ये लिख दिया 8/10. क्या ये फ्रैक्शन irreducible फ्रैक्शन है? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ. कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से, दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. यानी कि इनका HCF क्या है? 2 है. तो आफ्टर कन्वर्टिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म 8/10 को मैंने दोनों को 2 से काट दिया. 2 से काट दिया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 5. ठीक है. तो अब क्या आया? फ्रैक्शन 4/5. तो ये 4/5 जो है, दिस इज एन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. ये एक इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, ये वाला नहीं. ओके. अंडरस्टूड? Yes, sir. Very, very, very Yes, sir. well done. Yes, sir. Yes, sir. इसके now बाद the- हमारी sir, एक्सरसाइज शुरू होती है. इसमें हमको पहले फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं. Sir, can I say tell how to compare? Sir, So this we have to. thing short method, was in very last short class. method. I know how to do. प्रॉब्लम आ जाएगी. Yes, sir. I know. Sir, I have done my exercises 2A and 2B. ये सब आ जाएगा. There are 3 exercises in the chapter. Sir, this chapter is very easy. Sir, we have done in the previous class. Very what? Easy. Yes, sir. Sir, in the 5th class, we have done the multiplication of fraction and division. अच्छा. Very nice. So you can give homework exercise 2A. ओके बेटा, होमवर्क देंगे आपको. Sir, class